God is standing in heaven. He is telling us, your appointed time has come. I am going to produce divine speed. The last shall become the first. The down shall become the top. The slave shall become a king. The prisoner will become the prime minister. From the pit I will raise Joseph to the palace. I will turn an orphan Esther into the queen of 127 countries. Turn with me to Ezekiel chapter 36. यहेजकेल नबी के पुस्तक 36 अध्याय में आइए And I want you to read verse 11. और मैं चाहूंगा 11 पद पढ़ी जाए। And I will multiply upon you man and beast, and they shall increase and bring fruit. And I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings. And ye shall know that I am the Lord. मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। Amen. तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। Today God wants to let you know परमेश्वर चाहते हैं कि आज रात आप ये जान ले, He is going to bless you वो आपको आशीष देना चाहता है more than your previous blessing. पिछले सारी आशीषों से बढ़कर लेना चाहते हैं। Amen बोलिए। आमीन। More than your previous blessings, पिछली आशीषों से भी बढ़कर I am going to prosper you more. मैं तुम पर अधिक भलाई करूंगा। How many of you say amen? I believe with all my heart, मैं पूरे दिल से मानता हूं God always has the best for the rest. परमेश्वर हमेशा बाकियों से बढ़कर अपनों के लिए सर्वोत्तम करता। You start humbly, आप अपने आप को नम्र करते हैं, but God develops the blessing in you. फिर परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ाता है। He turns the 2 into 4, 2 को 4 में बदलता है, 30 to 60, 30 को 60 में बदलता 60 है, to 100, 60 को 100 में बदलता है, 100 to 1000, 100 को 1000 में बदलता है, 1000 to crore after crore. 1000 को करोड़ में बदलता है। This year, इस साल the Lord looks at you and says, आपकी ओर देखकर प्रभु यहोवा I कहता am है, going to multiply blessings on you. तुम्हारी आशीषों को मैं बढ़ाऊंगा। Addition means और बढ़ाऊंगा मतलब 7 plus 7, 14. 7 और 7 मिलकर 14। Multiplication means लेकिन गुणात्मक रीति से 7 into 7. 7 गुना 7 कितना होगा? 49 होगा। Hallelujah. ज्यादा है। That is how God is going to bless you. इस रीति से प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। He is going to bless you beyond your imagination. तुम्हारे सोचने से बढ़कर तुम्हें आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। 100 plus 100, 100 और 100 मिलकर 200. 200, That is addition. वो तो जोड़ है। But when God says, I will multiply लेकिन जब प्रभु कहता है मैं तुम्हें गुणात्मक रीति से बढ़ाऊंगा, 100 into 100 100 गुना 100 is not 200. वो 200 नहीं होते, It is 10,000. वो 10,000 होते हैं। आमीन बोलिए। Hallelujah. हालेलुया। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाओ हालेलुया। Lord, प्रभु, my blessings are not progressing well. प्रभु मेरी आशीषें नहीं बढ़ रही है, What is the reason? क्या कारण है? Today God wants to let you know. प्रभु आपको कहना चाहता है, I have your time in my hands. तुम्हारा समय मेरे हाथ में है, And I am the master of the time. समय का स्वामी मैं हूँ, And I will quicken things in your life. चीजें जल्दी से मैं कर दूंगा। Today message title, आज का संदेश का शीर्षक है Divine Speed. ईश्वरीय गति। बोलिए, ईश्वरीय गति। Divine Speed. ईश्वरीय गति। Your two-wheeler can go fast till 140 kilometers. आपका 2 व्हीलर 140 तक ही दौड़ सकता है,
Your car can go fast till 180 or 200 kilometers. आपका कार ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर तक वेग से जा सकता है। Our train can go up till 240 kilometer speed. हमारा ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति मील दौड़ सकता है। Our plane can go 840 kilometers per hour speed. हवाई जहाज 840 किलोमीटर प्रति रफ्तार जा सकता है। But for God, लेकिन परमेश्वर के लिए 1 second is 1000 years speed for him. 1 सेकंड 1000 वर्ष जैसा है, इतना गति है। Hallelujah. हालेलुया। Somebody say, ऐसे बोलिए। अरे उस नहीं आ रहा है भाई, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, और जोर से। जोर से बोलिए। I like it. Divine speed. ईश्वरीय वेग, Divine speed. ईश्वरीय वेग। In Romans chapter 9, रोमियो की पत्री 9वें अध्याय में verse 28, और उसका 28 पद, the Bible says, बाइबल कहती है, the Lord will carry out his sentence on earth with speed and finality. परमेश्वर 9 के 28 में लिखा है, 28. प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करे। Turn to your neighbor and say, शीघ्र आता है। शीघ्र आता है, ऐसा बोलिए अपने Come on, पड़ोसी come on, को। tell your neighbor. बोलिए शीघ्र, अरे आपका पड़ोसी कुछ शीघ्र होगा। पाकिस्तान से आया है क्या? शीघ्र होगा, हाथ पकड़ के बोलिए, शीघ्र आएगा, यानी जल्दी होगा। जल्दी होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी होगा। कितने लोग को आज छुटकारा या अद्भुत जल्दी होना चाहिए? वो सिर्फ वो हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। Sometimes it is good to wait. कभी कभी इंतजार करना अच्छा होता है। Sometimes you need a miracle now. कभी कभी चमत्कार आपको अभी इसी वक्त चाहिए। For you, आपके लिए the Lord says, प्रभु कहता है, He will fulfill His word अपने वचन को वो पूरा करेगा with speed बड़े वेग से and finality. और उसे सिद्ध करेगा, यानी पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Whatever blessings were delayed in your life, जो भी आशीषें आपके जीवन में अब तक रुकी हुई है, God is going to speed it up. परमेश्वर उसमें वेग लाने वाला है, यानी Divine शीघ्र। speed, divine speed. ईश्वरीय शीघ्र होगा, जल्दी होगा। Hallelujah. Somebody said amen. आमीन। Turn to your neighbor and say, जल्दी होगा, जल्दी होगा। जल्दी होगा, बोलिए अपने पड़ोसी को, आपके पास जो बैठा है। God has planned everything in the universe. सब कुछ इस पृथ्वी में परमेश्वर ने योजना बना रखा है। In Acts 17:26, और प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 पद में the Bible says he had determined the times before appointed. और वहां लिखा है कि उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। What is that appointed time? नियत समय क्या है प्रभु का? There are two kinds of time in the world. दुनिया में 2 प्रकार का समय है। One is the watch that we have. एक समय जो आपकी घड़ी बताती है, This is called chronos. उसको क्रोनोस कहा जाता है। This will go from 1, 2, 3 to 12. जैसे 1, 2, 3 करके 12 तक घड़ी And then again सुई become घूमता है। 1, 2, 3, 4 until 12 a.m. फिर उसके बाद फिर 1, 2, 3 करके 12 तक जाता है। Again it will come to 1. फिर वो 1 को आएगा, फिर चलेगा। Time is a circle. समय एक परिधि में घूमता है। जल्दी आए, जल्दी आए। 4 लोग, 5 लोग आइए। हाँ। हाँ, यहाँ आप एक सर्कल बन के घूमिए। This is time. समय का सुई ऐसे घूमता है, It moves in a circle. एक सर्कल में घूमता है। Summer will come, समर गर्मी आएगी, winter will come, फिर शीत आएगा, बारिश ठंडी आएगी, आएंगे। बारिश आएंगे, then again summer will come. फिर उसके बाद फिर गर्मी आएगी। Time is a circle. समय एक गोलाकार रीति से घूमता This is रहता है। chronos. इसको क्रोनोस कहते हैं। But you know what? God लेकिन जो परमेश्वर है doesn't fit into a time. हमारे क्रोनोस के अंदर फिट नहीं होता। In Ecclesiastes,
सबोपदेशक में chapter 3, तीसरे अध्याय में the Bible says in verse 1, पहले पद में लिखा है, for everything there is a time. हर चीज के लिए एक समय होती है। Everything in this world संसार के अंदर हर बात के लिए revolves around a time. एक समय के चारों तरफ घूमती है। As we read before, जैसे पहले पढ़ा हमने in Acts 17:26, प्रेरितों के काम 17 के 26 में, he has already appointed a time. परमेश्वर ने पहले से एक समय ठहरा कर रखा है। This time, this boy will be born. इस समय में ये बालक जन्म होगा। For his wedding, लेकिन उसका जो विवाह है, God has selected one day. एक दिन परमेश्वर ने तय करके रखा है। That day, और वो दिन will be a glorious day. एक महिमामय दिन होगा। यही है एक्सपेक्टेशन। यही है आशा रखना। सबको एक एक्सपेक्टेशन है। हर एक के पास ऐसी आशाएं हैं। Everybody is praying. हर एक जन दुआ कर रहा है, God, in my time, परमेश्वर मेरा वक्त, please Lord, प्रभु दया give me करो, the beautiful girl. एक सुंदर पत्नी मुझे दो। Everybody has a prayer हर एक के पास एक प्रार्थना है in a time. और वो समय में चल रहे हैं। My life will be settled. मेरा जीवन कभी तो सेटल हो But what जाएगा। happens लेकिन क्या होता ही है, when his age is 31? जब उसकी उम्र 31 हो जाएगी, When his age is 34? जब उसका एज 34 हो जाएगा, He can't wait. और नहीं वो इंतजार कर You पाएगा। know how his prayer will be? और उसका प्रार्थना कैसे होगा? यीशु मसीह, जल्दी चलो करो यार, चलो यार, प्रभु, जल्दी करो। मेरा बीवी किधर है? When delay comes, जब उत्तर आने में देरी होती the है, heart is broken. तब दिल टूट जाते हैं। But you know what? एक बात है, मालूम है क्या? God has planned everything. सब कुछ प्रभु ने योजना बना रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Abraham, अब्राहम, you got married with Sarah. सारा से तुम्हारा शादी हुआ। Nobesh, रोबेश, एक सारा मिलेगा तुमको। तुमको सारा मिलेगा। सारा नाम नहीं है, सारा जैसा। 100 years, 100 साल nothing happened. कुछ नहीं हुआ। But you know who is the one who is promising his word to you? लेकिन कौन आपसे वायदा दे रहा है? The one who can quicken time. जो समय को जल्दी से, वेग से गति करा When सकता है। God decides to give you a miracle, जब चमत्कार देने के लिए प्रभु सोच लेता है, He will stop the time. वो समय को रोक लेगा। This is called Kairos moment. उसे काइरोस घड़ी कहेंगे हम। और बोलेंगे नोबेश, नोबेश, even if it is delayed. यद्यपि प्रार्थना का उत्तर विलंब हुआ, At 24 years, 24 साल है आपका, you loved a girl. आपने किसी एक लड़की को चाहा, प्यार किया, प्यार किया, उसने छोड़कर जाया। वो आपको छोड़कर गया। अब रो रो कर दाढ़ी बनाया। But God says, लेकिन प्रभु कहता है, I have the best for you. तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मैंने रखा है। Even if it is 100 years, यद्यपि 100 साल हो जाए, I can stop time. मैं समय को रोक लूंगा। I can make not Chronos. मैं क्रोनोस पर निर्भर I नहीं am हूँ, Kairos. मैं काइरोस हूँ। I can take you out of time मैं तुम्हें समय के अंदर से बाहर निकाल लूंगा, and your womb, और तुम्हारा जो गर्भ है, which is dead, जो मरा हुआ है, I can revive it उससे फिर से जिंदा कर and दूंगा, I will give you a baby और एक संतान तुम्हें दूंगा। and he will be called Isaac. उसका नाम इसहाक होगा। With him I will make my covenant. मैं अपनी वाचा पूरी करूंगा। That is Kairos. काइरोस, When God can quicken परमेश्वर जीवन को ला सकता है, divine speed. और ईश्वरीय गति से होता है काम। ईश्वरीय गति, गति, वही मेरे मैसेज का टाइटल है। आपके जीवन में अद्भुत चाहिए आपको? चमत्कार चाहिए नोबेश? ईश्वरीय गति से। ईश्वरीय गति से काम होगा। And today, और आज that divine speed is coming to meet you. ईश्वरीय गति आपके जीवन में आने जा रहा तालियां है। बजा के कोई आमीन बोलिए। आमीन। Thank you so much, my dear धन्यवाद। brothers. It is not enough to know what needs to happen in life. ये जानना काफी नहीं कि जीवन में क्या होने वाली है। You need to understand divine timing. आपको ईश्वरीय समय को जानना होगा। There are people waiting for their timing, for the purposes revealed to be fulfilled.
बहुत सारे लोग जिन्होंने उम्मीदें बांध रखी हैं कि उनके जीवन में जो उद्देश्य उन्होंने रखा है वो कब पूरे होंगे। In Psalm 102, भजन 102 verse 13, 13 पद में the Bible says, "You will arise and have compassion on Zion, प्रभु तो उठ खड़ा होगा और सियोन पर अपनी करुणा प्रकट करेगा। for it is time to show favor to her. The appointed time has come." अब समय आ गया है कि तू उस पर अनुग्रह करने को ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। The appointed time has come. ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। Today I believe मैं विश्वास करता some हूं of you have been waiting for years कुछ लोग जो सालों से इंतजार कर रहे हैं for marriage, विवाह के लिए, for a job, नौकरी के for लिए, a child, एक बच्चे के to लिए, come out of debts. कि मरे हुए जगह से भी उनका उत्तर आए, For your finance, आपका धन, for your children. आपके बच्चे, You have been crying. आप उनके लिए रो रहे हैं। But there is a time that is called the acceptable time. लेकिन परमेश्वर का एक नियत समय भी हर एक के लिए होती है। The time of favor. अनुग्रह का समय, Amen. आमीन। The time of favor. परमेश्वर के अनुग्रह का समय, That is the time. वही वो समय है। Today it has come. आज वो आ गया है। हालेलुया बोल सकते हैं? बोलिए आमेन। आमीन, तालियां बजाकर आमेन बोलिए। आमीन। That is the miracle working time. ये चमत्कार करने का समय है। That's why the psalmist says, इसलिए भजनकार कहता है, "You will arise तो उठ खड़ा होगा and have compassion on Zion." और सियोन पर अपनी करुणा प्रकट करेगा। Today God is standing in heaven. आज स्वर्ग में परमेश्वर खड़ा है। He is telling us, वो हमसे कह रहा है, your appointed time has come. तुम्हारा नियत समय आ गया है। I am going to produce divine speed. अब मैं ईश्वरीय गति लाऊंगा। The last shall become the first. जो आखिर में है वो पहले हो जाएंगे। आमीन। The down shall become the top. जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आएगा। आमीन। The slave shall become a king. जो गुलाम था अब वो राजा हो जाएगा। आमीन। The prisoner will become the prime minister. जो कैदी है वो प्रधानमंत्री होगा। From the pit I will raise Joseph to the palace. गड्ढे से यूसुफ को उठाकर राजमहल में उसे रखूंगा। I will turn an orphan Esther into the queen of 127 countries. उस अनाथ लड़की एस्तर को उठाकर 120 देशों के ऊपर रानी बनाऊंगा। आमीन बोलिए प्रभु कर सकते आमीन। हैं, डिवाइन स्पीड में करेंगे। परमेश्वर ईश्वरीय गति से करेंगे। How many of you want to say amen to that? कितने लोग आमीन कहेंगे उसके लिए? Divine speed. ईश्वरीय गति। God is going to change gears in your life. आपके वर्षों को प्रभु बदलने वाला है। How many of you want to say amen? आमीन कहेंगे आप? Psalm 119, भजन 119 126. 126वां वचन। The psalmist says to the Lord, भजनकार प्रभु से कह रहा है, "It is time for you to act, Lord. प्रभु तेरा काम करने का समय आ गया है। It is time for you to act, O Lord." वो समय आया है कि यहोवा काम करे। God says, "Today it's time for me to act in your life." परमेश्वर कह रहा है, ये मेरा वक्त है और मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। That is what God says. वो प्रभु कहता है। In Romans 9:28, और रोमियो की पत्री 9 के 28 में the Lord will carry out His word. परमेश्वर अपने वचन को गति से, वेग से ले जाएगा Yes, with finality. और उसे सिद्ध करेगा। Amen. आमीन। That will be the final in your life. परमेश्वर पूरा कर देगा काम। No more delays. और कोई इंतजार नहीं, No more troubles. और कोई समस्याएं नहीं, No more destruction. अब कोई अड़चन नहीं होगी, Only peace and prosperity. सिर्फ शांति होगी, समृद्धि होगी। The first miracle of Jesus यीशु का जो पहला चमत्कार was a miracle of time. वो भी समय का Time. समय का ही चमत्कार था। In John chapter 2, ये और यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय, turn with me to John chapter 2, दूसरे अध्याय यूहन्ना की पत्री में आइए। and the Bible says, बाइबल कहती है, Jesus was at Cana of Galilee, गलील के काना नाम के शहर में यीशु मसीह थे and He was at a wedding.
और एक विवाह में वो गए हुए थे, And in that wedding, और उस विवाह के अंदर Jesus and his disciples were invited. यीशु और उनके चेलों को निमंत्रण दिया गया था, And in that wedding, और उस विवाह के अंदर suddenly the wine was not there. दाखरस खत्म हो गया। No more wine. अब दाखरस नहीं बचा था। When they told the mother of Jesus, no more wine, यीशु के माता को जब कहा गया कि अब दाखरस नहीं है, she came with a burden to Jesus. बड़े बोझ के साथ यीशु के पास आई, And she said, there is no more wine. और उसने आकर कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। To which Lord Jesus said, फिर यीशु ने उनसे उत्तर दिया, woman, हे महिला, why do you involve me? मुझे तुझसे क्या काम? My hour has not yet come. अभी मेरा समय नहीं आया। If I tell my mother, अगर मैं अपनी माता जी से ये कहूँ, woman, हे स्त्री, you know what my mother will do? मेरी माँ क्या करेगी मालूम है? किसको स्त्री बताया? हे माँ बुला रहे. Why did Jesus say woman? क्यों यीशु ने कहा हे महिला? Because he is not the son of Mary. He is the son of Jehovah. क्योंकि वो मरियम का बेटा नहीं, परमेश्वर यहोवा का बेटा था। आमीन। Sometimes in your life, कई बार आपके जीवन में people will come. लोग आएंगे, They will come and tell you, वो आकर आपसे कहेंगे, what are you going to do? क्या आप करोगे? Just marry anyone. किसी को भी शादी कर लो, Just buy any house. कोई भी घर खरीद लो, Just do any job. कोई भी नौकरी कर लो। But you will tell them, लेकिन आप उनसे ये कहना, no, 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 I am waiting for the best. नहीं नहीं, सर्वोत्तम का इंतजार मैं कर रहा हूँ। The mother of Jesus, यीशु की माता Mary, came and asked Yeshu, मरियम ने आकर यीशु से कहा, हे यीशु, hey, do something. कुछ तो करो। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, my hour hasn't come. मेरा समय नहीं आया है। Listen carefully. ध्यान से सुनना। In your life, आपके जीवन में probably you've still not seen a miracle. अभी तक शायद चमत्कार नहीं देखा। You know why? क्यों है मालूम? Because there is a set time for God to do a miracle. क्योंकि चमत्कार करने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर ने एक समय रखा। Our God is such a God. हमारा प्रभु ऐसा परमेश्वर है, For him, उसके लिए time is not a constraint. समय कोई रुकावट नहीं है। So you know what Mother Mary said? तो मरियम ने फिर क्या कहा? She told all the workers there, सारे सेवकों को जाकर कहा, do whatever he says. जो वो तुमसे कहे वो कर लेना, Whatever he tells you, do it. जो वो कहे उसी अनुसार करना। So what happened? तो फिर क्या हुआ? Nearby, पास में ही in that house, उस घर पर there were jars. बड़े बड़े जार्स रखे हुए थे, मिट्टी के बर्तन। जो भी jars हमें मिले, हमें जो जार मिला, ये आपका पीने का पानी है. इसमें पीने का पानी रखा जाता है, इसमें भी पानी. इसमें भी पानी है। And 6 jars. 6 जार बाहर थे, 6 jars. 6 मिट्टी के पात्र। Every house will have them. हर घर में ऐसा होता है। When people come for their house, जब उस घर में बाहर से लोग आते, they will take water from that उस जार में से घर के लोग पानी निकालते and they will wash their hands. और उनके हाथ धोते थे। Why? क्यों? Because now they are going to eat. क्योंकि अभी वो खाना खाने वाले हैं। They will wash their feet. और उनके पैर धोए जाते थे, They will wash their face उनके चेहरे वो धोते थे, and then come inside. फिर वो घर के अंदर आते They थे। are not wine jars. वे सब दाखरस के मड़के नहीं थे, They are jars for keeping water to wash. पैर हाथ धोने वाले पानी के मड़के रखे थे। Nobody worships or colors the jar or the barrel of water kept for cleansing. और ऐसे मिट्टी के घड़े जो बाहर हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनको कोई पसंद नहीं करता था। And so everybody brought the jars. सब लोग वो मिट्टी के मड़के लेकर आए। Jesus told the people, और यीशु ने उनसे कहा सेवकों fill से, waters in this jar. इन मिट्टी के घड़ों में पानी भर दो। The jars were empty. वो सब खाली थे। Jesus said, यीशु ने कहा fill with water. पानी से भर दो इन्हें। How many of you are ready to fill yourself? अपने आप को भरने के लिए कितने लोग आज चाहते हैं? In the Bible, बाइबल में water, पानी, Jesus said, यीशु ने कहा
If anyone believes in me, अगर कोई मुझ पर विश्वास करे, in their belly उनके पेट में rivers of living water will flow. जीवन के जल की नदियां बहेंगी, Meaning the Holy Spirit will come. पवित्र आत्मा आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So he told them, सेवकों से यीशु ने कहा, don't keep it empty. खाली मत रखना, I can't do a miracle. मैं चमत्कार नहीं कर You सकता, need the Holy Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा So चाहिए। they came and poured the water तो वे लोग आकर उसमें पानी भरा, in all the jars. सभी जार के अंदर They poured water. सब में पानी भरा, They filled it with water. उसे पानी से भर दिया। What is needed? क्या चाहिए? Wine is needed. दाखरस चाहिए। What are they filling? क्या वो भर रहे हैं? Water. जल से भर रहे How हैं। can water become wine? जल दाखरस में कैसे बदलेगा? Listen carefully. ध्यान से सुनना। For preparing wine, एक दाखरस बनाने के लिए there is a long process. बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। First of all, सबसे पहले the wine branch, जो दाखरस की जो शाखाएं होती हैं, it has to be planted in the ground. उसे जमीन पर बोया जाता है। It has to draw the water from the ground. जमीन से इससे पानी लेना होता है, And the leaves will come. फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं, And the blooms will come. फिर छोटे छोटे उसमें जो वो फूल। अंकुरित फूल होने लगते हैं, And then those flowers will become grapes. फिर वो फूल जो है आगे बढ़कर वो अंगूर में बदलेंगे। In the grapes, अंगूर जो होंगे there is a juice. उसमें जूस होता They है, have to pluck it. उसे बाहर निकालना They है, have to bring it. उसे लाना होता And है, they have to press it. उसे दबाना पड़ता है, And then collect it in a barrel. फिर एक जार के अंदर उसे भरना पड़ता है, And then they have to store it. फिर उसे समय तक रखना पड़ता है। Can I show you how the wine is stored in the barrels? बैरल के अंदर कैसे दाखरस रखा जाता है आपको दिखाऊं? For a wine to ferment, एक दाखरस जिसे पीकर लोग मतवाले हो जाए, उससे बनने के लिए it takes months, कई महीनों तक उसे रखा जाता है, sometimes even years. कई बार कुछ सालों तक रखी जाती It है। cannot happen overnight. एक रात में दाखरस नहीं बनता है। All of them in the wedding, और जितने भी लोग उस विवाह में बैठे थे, they had the first wine, पहला दाखरस पी लिया था, but there is no wine now. अब कोई दाखरस नहीं बचा था। It is like no biryani in a wedding today. मानो विवाह भोज है, बिरयानी खत्म हो गया है, It causes big shame. और ये शर्मिंदगी का पल है। All the people there, और वहां लोग तो बैठे हैं, they are asking, where is the wine? Where is the wine? दाखरस पूछो, कहाँ है? पूछो। दाखरस कहाँ है? दाखरस कहाँ है? किधर है? दाखरस कहाँ है? दाखरस कहाँ है? सब पूछ रहा है। सब लोग पूछ रहे हैं। मसीह का माँ प्रार्थना कर रहा है। कौन है मसीह का माँ? मसीह का माँ एक मसीह- लड़का है। नहीं नहीं, मसीह का माँ मरियम कौन है? आप भी मरियम? हाँ, हाँ, आप मरियम है। आप ये करा, इधर आओ। हाँ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मसीह के लिए प्रार्थना करो। अरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। She is tensed. Mary is tensed. मरियम बहुत परेशान है कि दाखरस खत्म हो The गया। house is tensed. पूरे घर के लोग परेशान हैं, They are all परेशान है। चिंता में है। Now, अब after Jesus filled the water, यीशु ने जब इन पात्रों में पानी भर दिया he called the workers. और सेवकों को बुलाया, Come here. आओ All the workers. सभी सेवक आ जाओ। He told them, और उनसे कहा, Joseph, यीशु I want you to take this and give it to the wine master. पहले जाके भोज के प्रधान को ये पिलाना। He is the one who tests the food. और ये वो व्यक्ति है जो पहले भोजन को चखता है। एक पालक पनीर पालक अच्छा है, अच्छा है, इसमें थोड़ा नमक डालना चाहिए, और नमक डालना है। ये सब बताना वाला है ये ब्रदर। भोज का प्रधान पहले बताएगा खाना ठीक बना है कि ये नहीं। पहले खाएंगे फिर हमको खिलाएंगे। हाँ, इतना मोटा क्यों है अब पता है। So he told the workers, तो उसने सेवकों से कहा, show it to him. My question is, मेरा सवाल है, listen very carefully. ध्यान से सुनना। Are you ready for the miracle? चमत्कार के लिए तैयार हैं Are आप? you ready for the miracle? चमत्कार के लिए तैयार हैं आप? 6 jars. 6 मिट्टी के घड़े हैं। 6. 6 Man was made on the 6th day. मनुष्य भी 6वें दिन बना था, But on the 7th day, लेकिन 7वें दिन the Father rested. पिता ने विश्राम लिया। 6 jars are here. 6 मिट्टी के बर्तन है यहाँ।
Jesus was the seventh jar. यीशु ही सातवां घड़ा है। आनंद की भरपूरी यीशु मसीह है। यीशु ही आनंद की भरपूरी है। The seventh jar. सातवां जो घड़ा है, Jesus. यीशु, He came and stood near these water jars. इन 6 मिट्टी के घड़ों के पास आकर खड़ा हो गया। You know what happened to the water? फिर क्या हुआ उस जल के साथ? Water became so happy. जल बहुत खुश हो गया। And the water said, पानी ने कहा, oh, we have tasted Jesus. हमने यीशु को चख लिया। And we are going to turn into wine today. आज हम इसे बदलकर दाखरस बन जाएंगे। The water remembered. पानी ने याद किया, Hey, this is the branch that fell into Mara and made Mita. वो यीशु आ गया है। ये वो शाखा है जो टूटकर मारा के अंदर गिरा था और कड़वा जल मीठा हो गया था। Today, आज in your life, आपके जीवन में Jesus is going to come, यीशु आने जा रहा है। and whatever will take months जो चीजें महीने लगते हैं पूरा होने from में, water to enter the branch, to enter the leaf, to become a fruit, and to be pressed and made wine after so many months and years. 1 second. It takes 1 second for God to do a miracle for you. जल जो दाखलता के अंदर जाती है, फूल को लाती है, वो फूल जब वो अंगूर में बदलता है, जिसे तोड़कर लाया जाता है, कुचला जाता है, उसमें से रस निकालकर रस के कुंड में रखी जाती है महीनों तक, जो फिर जाकर दाखरस बनता है। आज 1 सेकंड के अंदर इसको यीशु दाखरस में बदल दिया। जो समझे वो तालियां बजाकर बोलिए आमेन, आमेन, आमेन। Your body आपका शरीर is filled with water. जो जल से भरा हुआ है, There is no health. उसमें कोई चंगाई नहीं, Your, स्वास्थ्य नहीं। your kidney is spoiled. आपका किडनी खराब है, Your blood is spoiled. आपका लहू दूषित है, Diabetes. आपको डायबिटीज है, They have to remove your leg. उस आपको पैर भी काटना पड़ सकता But है। God says, लेकिन परमेश्वर कहता I है, am the seventh jar. मैं सातवां खड़ा हूँ, I am the seventh jar. मैं सातवां खड़ा हूँ। I have come to speed up things in your life. मैं तुम्हारे जीवन में चीजों को जल्दी करने I वाला am हूँ। bringing a divine speed. मैं ईश्वरीय गति से काम करूंगा। ये ले लो. भोज के प्रधान को लेकर दो, Go and give it to the leader. भोज के स्वामी को दे दीजिए, Ask him to drink. उसे कहो पियो। He drank it. And he says, और वो कहता है, what is this? ये कैसे हुआ? Everybody will give the best wine in the first. हर एक जन सबसे बढ़िया दाखरस पहले पिलाते हैं। Give him a mic. उसे माइक But you, दीजिए। sir, लेकिन तुमने यहां देख. हाँ? बोले उसे. ये कहाँ था अब तक? ये कहाँ रखा था आपने? क्यों भैया? क्या हुआ इससे? ये बहुत ही टेस्टी है, पहले आपने क्यों नहीं दिया? आपका जीवन में जो भी आ रहा है वो बेस्ट से बेस्ट है। आज रात आ रहा है। The best is coming. सर्वोत्तम आ रहा है। The wine, दाखरस the latter wine, जो आखिर में आया, tastier. वो ज्यादा मीठा, ज्यादा In your स्वादिष्ट life, था। आपके जीवन में whatever you have witnessed जो भी आपके जीवन में आपको चाहिए, is nothing. वो कुछ नहीं। But today God says, लेकिन परमेश्वर आज कहता है, I am going to quicken a miracle in your life. आपके जीवन में वेग से मैं चमत्कार करूंगा। Somebody shout hallelujah. कोई हालेलुया बोलिए चिल्लाकर। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से बोलिए हालेलुया। 38 years 38 साल he is sick. वो बीमार है। All the people, जितने भी लोग थे, whenever they saw the water being stirred, जब भी वो देखते कि कुंड के अंदर पानी हिल रहा है,
They jumped into the water. वे पानी के अंदर कूद जाते हैं। नहीं, ऊंचा है। कूद जाओ। आपको अद्भुत नहीं चाहिए? चमत्कार नहीं चाहिए क्या? चंगाई नहीं हाँ। चाहिए? अरे भैया सो गया का? 38 ये सो कर यहां खाना पीना सोता। 38 साल से एक ही जगह पड़ा हुआ है। किसी दूसरों को देख, बाकी लोग कैसे पानी के कुंड में चले जा रहे हैं, देख। 1 2 3, अरे ये भी गया, अरे ये भी गया। भैया 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 ध्यान से, उमर अरे वो भी गया, अरे वो भी गया, ये भी गया। सालों सालों देख रहा है। 38 सालों से वो देख रहा है, अन्य लोग कुंड में चले जाते हैं पर वो नहीं जा पा रहा है। Why you are not getting healed? क्यों तुझे चंगाई नहीं मिल रहा है? He is saying, वो कह रहा है nobody. कोई नहीं है। Jesus asked him, यीशु ने उससे पूछा, do you want to be healed? तू चंगा होना चाहता है? What should be the answer? क्या जवाब होना चाहिए? Yes हाँ or no? या तो ना। You know what this fellow is saying? लेकिन इसने क्या कहा? मेरा मामा अच्छा नहीं है, मेरा मामा अच्छा नहीं है, मेरा मामी बुरा है, मेरी मामी बुरी है, मेरा पापा मुझको प्यार नहीं करता मेरा है, पापा मुझे प्यार नहीं करता, मेरा अम्मी में मुझे छोड़ कर मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझसे ज्यादा मेरी बहन से प्यार करते हैं। 38 years 38 साल हो गया complaining. हमेशा शिकायत करता अयो था। अयो अयो अब क्या करूं? अयो, अफसोस कर रहा है, pity on me. अपने ऊपर तरस खा रहा है। Jesus came. यीशु आया। 38 years 38 साल से he had the miracle. उसके सामने चमत्कार था। He could have jumped. पानी में कूद सकता था। My question is, मेरा सवाल है, 38 years 38 साल से inch by inch, इंच इंच करके आगे जा can you सकता not था। come near the water? पानी के निकट आने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करके। अभी आओ। 38 years क्या किया आपने? रुको रुको रुको, 38 साल से क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। विश्वास नहीं है इसके साथ। उसके अंदर विश्वास नहीं था। इसीलिए मसीह ने कहा, इसलिए यीशु ने उससे कहा, इनफ, बस बहुत हुआ, टेक योर बेड। अपना खाट उठा। You don't need an angel to stir the water. तेरे लिए किसी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं कि आकर पानी You हिलाए। don't need to jump into the water. तुझे पानी में कूदने की भी जरूरत नहीं। 38 years sickness. 38 साल की बीमारी, 1 second, 1 सेकंड में I will heal you. मैं तुझे चंगा कर दूंगा। Divine speed. ईश्वरीय गति। That sickness that cannot be healed 38 years. 38 साल से जो बीमारी चंगाई को नहीं पाया था, Jesus said, यीशु ने कहा, get up. उठ खड़ा हो। Pack your bag. अपना बैग बोरिया बिस्तर उठा। Pack your bed. अपना बेड उठा। Don't leave the bed here. यहाँ पर बेड नहीं छोड़ना, Because tomorrow morning क्योंकि कल सुबह you will come and sleep here. फिर आकर तू सो जाएगा यहाँ। I don't want to see you here. मैं तुझे वापस यहाँ देखना नहीं चाहता हूँ। I am changing your life forever. मैं तेरी जिंदगी बदल रहा हूँ हमेशा के लिए। You are free. अब तू आजाद है। चंगा हो गया? अरे हिलाओ। संतुष्ट है? One day, एक दिन, 1 second, एक पल में he spoke the word. एक वचन बोला यीशु ने। Psalm 107 verse 20 says, और भजन 107 के 20 में लिखा है, he sent the word वो वचन भेजता है and he healed और चंगा करता है। right now. अभी इसी वक्त Jesus. यीशु। How many years I don't know. कितने साल मुझे मालूम नहीं। You're waiting for your miracle, आपके चमत्कार को आप इंतजार कर for रहे your हैं। wedding, आपके विवाह के लिए, for your child, आपके संतान के लिए, for your debts to be broken, आपके जितने भी कर्जे हैं कि खत्म हो जाए, for your business to flourish. आपका व्यापार और बढ़े। Today the Lord Jesus says, आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं, I am the 7th man. मैं 7वां मनुष्य हूँ। I am the fullness of God. मैं परमेश्वर की भरपूरी हूँ। When I come near you, जब मैं तुम्हारे पास when आऊंगा, I stretch my hands towards you, जब मेरे हाथ तुम पर रखूंगा,
whatever was empty जो कुछ खाली था will be filled with joy. वो आनंद से भर जाएगा। Wine means joy. दाखरस मतलब आनंद। Today God is going to fill you with joy. आज परमेश्वर आनंद से आपको भरेगा। Close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए। What is that you've been waiting for? वो क्या बात है जिसको आप इंतजार कर रहे हैं? God wants to let you know. परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं He is going to quickly fulfill His word. अपने वचन को जल्दी से वो पूरा करने पर है। Quickly He will fulfill His word on earth. पृथ्वी पर जल्दी से अपने वचन को प्रभु पूरा करेगा। He's going to do it in your life. आपके जीवन में पूरा करेगा। There is something happening right now. कुछ तो हो रहा है यहाँ आपके जीवन में। Mary said, do whatever He tells you. मरियम ने कहा जो वो तुमसे कहे वो करना। I am also telling you. मैं भी आपसे कहता हूँ Do whatever He tells you. जो वो आपसे कहे कर लो। Don't leave this ground without a miracle. बिना चमत्कार के यहाँ से जाना मत। Don't leave this ground without receiving a change in your life. अपने जीवन में परमेश्वर से बदलाव पाए बगैर यहाँ से जाना नहीं। You need a change. आपको एक बदलाव चाहिए। You need a miracle. आपको एक चमत्कार चाहिए। And Jesus is ready to give it to you. आज रात यीशु आपको वो देना चाहते हैं। One encounter with Jesus यीशु के साथ एक मुलाकात will change your life upside down. पूरी तरह आपके जीवन को बदल देगा। அன்பான நேயர்களே, இந்நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் ஜெப விண்ணப்பங்களையும் மற்றும் உங்கள் காணிக்கைகளையும் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி ரூவா ஊழியங்கள் எண் 82 ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, சிம்ஸ் மருத்துவமனை எதிரில், வடபழனி, சென்னை 26. உங்கள் காணிக்கைகளை ஆன்லைன் மூலமாக எளிதாக செலுத்தலாம். எங்கள் இணையதள முகவரி www.ruhaministries.org